إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. محترم بھائیوں اور معزز خواتین، سورہ کہف کی تفسیر کا یہ سلسلہ اور اس تفسیر کی یہ کڑی جو آج آپ کے سامنے ہے، آیت نمبر 90، 91 اور وقت رہا تو انشاءاللہ آیت نمبر 92 کے تعلق سے باتیں آج آپ کے سامنے انشاءاللہ پیش کی جائیں گی۔ اور آج کی جو آیت ہے، سب سے پہلی آیت اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس میں ارشاد ہے، یہ آیت نمبر 90 ہے۔ حتی اذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا۔ حتی اذا بلغ، یہاں تک کہ جب پہنچے، حتی اذا بلغ، یہاں تک کہ جب پہنچے، کون پہنچے؟ ذوالقرنین۔ حتی اذا بلغ، اس سے پہلے بات آ چکی ہے آپ کے سامنے، اس کے پہلے والی آیت میں یہ بات آئی تھی کہ جب وہ مغرب کی طرف، ویسٹ کا جو ایریا تھا، جو آبادی تھی اس سائڈ کی، وہ فتوحات کا سلسلہ، وہاں جو ہے جنگیں ہوتی رہیں، آگے بڑھتے گئے اور آخری آبادی تک پہنچے۔ اس کے بعد صرف پانی پانی ہی تھا، تو آخری آبادی تک انہوں نے پورا علاقہ فتح کر لیا اور یہ سارا کی سارا علاقہ توحید میں آ گیا اور ایک اللہ کا ماننے والا بن گیا۔ اب اس کے بعد ایسا نہیں ہوا کہ انہوں نے اب خاموشی اختیار کر لی، چپ چاپ بیٹھ گئے اور اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دے رکھی ہیں ان نعمتوں سے جو ہے محظوظ ہوتے ہوئے اور ان نعمتوں سے لذت حاصل کرتے ہوئے آرام سے اپنے بستر پر لیٹ گئے اور ایسی کمروں میں بند ہو گئے۔ ایسا نہیں تھا ان کا معاملہ۔ ان کا معاملہ یہ تھا کہ یہ بڑی محنت مشقت کرنے والے، اللہ کے دین کے لیے ہر طرح کی پریشانی اٹھانی پڑے تو کوئی حرج نہیں، ایک طرف کا پورا علاقہ فتح کرنے کے بعد اب وہ دوسرے علاقے کی طرف چلتے ہیں۔ اب دوسرا جو ہے اس کے بالمقابل دوسرا علاقہ کیا ہوگا؟ یہ پہلے ویسٹ سائڈ گئے تھے، اب ایسٹ سائڈ ان کو جانا ہے، تو اب اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اب ایسٹ سائڈ میں اب یہ آگے بڑھنا شروع ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ان کو نعمتیں دی تھیں، جو وسائل دیے تھے، جو سورسز دیے تھے، یہ ساری نعمتیں اور وسائل اللہ تعالیٰ کے دیے گئے یہ وسائل کام میں لاتے ہوئے، صحیح مصرف میں لاتے ہوئے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔ تو اب یہ ایسٹ کی سائڈ میں آگے بڑھتے ہیں، آگے بڑھتے ہوئے کہاں تک پہنچتے ہیں؟ حتی اذا بلغ مطلع الشمس، یہاں تک کہ جب سورج کے نکلنے کی جگہ پہنچ گئے۔
मतला कहते हैं निकलने की जगह, अरबी ज़बान में ये मतला, यहाँ जो पढ़ा गया है इसको मतला शम्सी, और इसे मतला भी कहते हैं लाम के ज़बर के साथ। इसका मतलब होता है तोलू की जगह, किसी भी चीज़ के निकलने की जगह, इसको ज़र्फ़ कहा जाता है। इसमें ज़र्फ़ तला यतलो, जो अरबी ज़बान में निकलने के लिए, तुलू होने के लिए ये फ़ेल इस्तेमाल है, उसी से ये इसमें ज़र्फ़ है। इसका माना होता है निकलने की जगह। अब क्या कहा, हत्ता इज़ा बलगा मतलअ अश-शम्स, अब ये ईस्ट की साइड में जब आगे बढ़े तो ये पहुंचे सूरज के तुलू होने की जगह। सूरज के तुलू होने की जगह से क्या मुराद है, ये इस साइड की आखिरी आबादी है। अब इसके बाद कोई आबादी नहीं थी, आखिरी आबादी को पहुंच गया। वरना आप जानते ही हैं कि आप दुनिया में कहीं भी सफर करके जाएंगे, आप यहीं पर बैठे रहेंगे तो आपको ये लगेगा कि हमारे बाद कुछ दूरी के बाद ही सूरज निकलता है और हमारे कुछ दूरी के बाद ही वो गुरूब हो जाता है, डूब जाता है। तो ये ऐसे हर एक को महसूस होता रहता है, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे ये और भी आगे बढ़ता जाएगा। तो यहाँ क्या है, सूरज के निकलने की जगह यानी ईस्ट का जो एरिया था, इस एरिए में सफर करते हुए और फतूहात हासिल करते हुए, अल्लाह के दीन की तरफ लोगों को दावत देते हुए और अल्लाह की तौहीद की तरफ बुलाते हुए, अल्लाह ताला का ये नेक बंदा अल्लाह ताला की नेमतों को काम में लाते हुए, इस्तेमाल करते हुए जब ईस्ट साइड में पहुंचता है, तो आखिरी आबादी जो थी इस साइड में, आखिरी आबादी जिनसे इनका साबिका पड़ा, वो आखिरी आबादी कैसी थी उसके बारे में कहा कि वजदहा ततलु अला कौमिन लम नजअल लहुम मिन दूनिहा सितरा। तो वहां इन्होंने पाया सूरज को, वजदहा पाया उसको, किसको, सूरज को। तो जुल्करनैन ने सूरज को पाया कि ततलो अला कौमिन, ये सूरज तुलू हो रहा है, निकल रहा है ऐसी कौम पर, लम नजअल लहुम मिन दूनिहा सितरा, ऐ लम नजअल लहुम सितरन मिन दूनिहा, जिस कौम के लिए हमने इस सूरज के ओट में कोई पर्दा नहीं रखा, इस सूरज के लिए कोई पर्दा नहीं था उनके लिए। यानी सूरज की ये धूप, सूरज की ये किरणें, आफताब की ये शुआएं उनके ऊपर डायरेक्ट पड़ती थी, बीच में कोई पर्दा नहीं था। बीच में पर्दा कब होता है, जब इंसान मकान बना लेता है और घर के अंदर रहता है तो बीच में पर्दा हो जाता है। और इस तरीके से डायरेक्ट जो है सूरज की शुआएं, सूरज की तपिश और सूरज की गर्मी डायरेक्ट उसको नहीं पहुंचती है। लेकिन इनके बारे में कहा अल्लाह तबारक व तआला ने कि उनके और सूरज के दरमियान हमने कोई पर्दा नहीं बनाया। पर्दा न बनाने का मतलब यही है कि इनके यहाँ न कोई मकान था, न कुछ नहीं, जमीन उनका बिछौना, आसमान उनकी छत, और इस तरह से ये कौम वहां पर बसेरा किए हुए थी, ये कौम इस तरीके से वहां बसी हुई थी, ये था उनका हाल। ये बताया अल्लाह तबारक व तआला ने कि वजदहा ततलु अला कौमिन लम नजअल लहुम मिन दूनिहा सितरा, कि पाया जुल्करनैन ने इस सूरज को कि ये सूरज ऐसी जगह तुलू हो रहा है, ऐसी जगह तो सूरज निकल रहा है, एक ऐसी कौम पर ये सूरज निकल रहा है जिस कौम के पास रहने के लिए कोई मकान नहीं, और सूरज की गर्मी से बचने के लिए, सूरज की धूप से बचने के लिए उनके पास कोई भी ठिकाना नहीं था। ये मुफस्सिरीन ने इसका माना किया। बाद मुफस्सिरीन ने तो यहाँ तक कहा है कि जिस्म पर कोई लिबास भी नहीं था जो उनको सूरज की शुआएं जिस्म पर डायरेक्ट पड़ने से
जो लिबास उन्हें रोक सके वो लिबास भी जिस्म पर नहीं था। और बिल्कुल ये सूरज उनके जिस्म पर डायरेक्ट पड़ता था। सूरज की ये शुआएं, सूरज की ये किरणें उनके जिस्म पर डायरेक्ट पड़ रही थीं। कोई पर्दा नहीं था, यहाँ तक कि लिबास भी नहीं था। तो कह लीजिए कि एक ऐसी कौम जिसका आबादी से कोई ताल्लुक नहीं था, एक ऐसी कौम जिसका तहजीब व तमद्दुन से कोई ताल्लुक नहीं था, एक ऐसी कौम जो इस तरह से रहती थी सहरा में कि उसके लिए सूरज से पर्दे के लिए कोई चीज नहीं थी, न घर था न कोई और चीज, और यहाँ तक कि कोई लिबास भी नहीं था। एक ऐसी कौम जो लिबास भी नहीं जानती थी, एक नंग धड़ंग रहने वाली कौम बाज मुफस्सिरीन के कौल के लिहाज से। तो जिस्म पर कपड़ा भी नहीं था, एक ऐसी कौम से उनका साबिका पड़ा और एक ऐसी जगह पर वो पहुंचे जहां कुछ भी नहीं है। लैस मिन दूनहा लम नजअल लहुम मिन दूनहा सितरा। ये मशरिक की तरफ ईस्ट साइड में जहां पहुंचे जुल्करनैन, वहां का जिक्र किया अल्लाह तबारक व तआला। अब वहां जाने के बाद उन्होंने क्या किया, इसके पहले बात आ चुकी है आपके सामने कि जब वो वेस्ट साइड में गए तो उन्होंने क्या किया, वो पूरी बात आपने आ चुकी है। तो यही मामला जब ईस्ट साइड में गए हो तो यहाँ पर भी वही गए। मकसद इनका मुल्क फतह करना नहीं था, मकसद इनका लोगों पर गलबा हासिल करना नहीं था, मकसद इनका सुपर पावर बन करके लोगों पर जुल्म ढाना नहीं था, लोगों को अपने पांव की धूल समझना ये इनका मकसद नहीं था, लोगों को अपने सामने झुकाना और नाकें उनकी अपने सामने जमीन से रगड़वाना ये उनका मकसद नहीं था। दुनियादारी उनका मकसद नहीं था, उनका मकसद तो सिर्फ और सिर्फ ये था कि किसी तरह से अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद का ये डंका पूरी दुनिया में बज जाए और पूरी दुनिया के लोग एक अल्लाह के मानने वाले बन जाएं। इसीलिए ये नेक पारसा सालेह और मुत्तकी बादशाह, सालेह और मुत्तकी हाकिम, इसने दुनिया की इन हुकूमतों से मुकाबला करते हुए ईस्ट साइड भी गया, वेस्ट साइड भी गया और पूरी की पूरी आबादी फतह करके उसने एक इस्लाम का बोलबाला दुनिया में किया और कलिमे तौहीद का दुनिया में डंका बजाया, उसे आम किया। यही इसका मकसद था। वहां पर भी जाकर के इन्होंने यही किया और पूरी तफसील क्या क्या हुई, कैसे किया, उसको बताने की जरूरत नहीं है। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने उससे जिक्र नहीं फरमाया। मकसद क्या था जो बयान करने का, अल्लाह ताला ने जो वसाइल दी, जो जराए दिए, जो सोर्सेस दिए, उसका सही इस्तेमाल करके अल्लाह के दीन को लोगों में आम करना, अल्लाह के दीन को लोगों में फैलाना और अमन व शांति दुनिया में कायम करना, अमन व अमान का ये पैगाम दुनिया वालों को पहुंचाना, अल्लाह के बंदों को सही तौहीद की दावत देना और उनको एक अल्लाह का मानने वाला बनाना, यही तो उनका मकसद था। और इसी मकसद को लेकर के वो दुनिया के इन इलाकों में फतह करते हुए आगे बढ़ते गए थे। ऐसा कुछ नहीं था कि पूरी दुनिया में तनहा मेरा डंका बजे और मेरे मातहत लोग रहे। ये अल्लाह के इस नेक बंदे का मकसद तो नहीं था और किसी भी अल्लाह के नेक बंदों का ये मकसद कभी भी नहीं होता। अल्लाह के नेक बंदे हमेशा हमेशा इस बात की कोशिश करते हैं कि ये दुनिया उसके बनाने वाले के ताबे रहे, ये दुनिया अल्लाह तबारक व तआला को मानने वाली बने, ये दुनिया अमन और शान का गहवारा बने। यही हर नेक और पारसा इंसान की ख्वाहिश होती है।
اس کے بعد کہا اللہ تبارک و تعالی نے کذالک وقد احطنا بما لدیہ خبرا، کذالک ایسا ہی ہوا، کذالک یہاں ایسے رک جایا جاتا ہے، بات کو اچھی طرح سے سمجھنے کے لیے اچھی طرح سے یہاں پر پڑھنے کے بعد رک جایا کذالک، جو بھی عربی زبان جانتے ہیں ان سب کے لیے ہم یہ بات یہ ذکر کرتے ہیں۔ کذالک، کذالک کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایسے ہی، ایسے ہی کا مطلب کیا ہے؟ یہ بات اوپر بھی آئی، بات یہاں بھی آئی، یعنی ایسے ہی یہ ذوالقرنین آگے کی طرف بڑھتے گئے، آگے کی طرف بڑھتے گئے۔ میرے بھائیوں، ہمارے لیے نصیحت کا پہلو کیا ہے؟ ہمارے لیے عبرت اور نصیحت کی کون سی بات ہے؟ اس میں یہ بات بھی جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے میرے بھائی۔ یہی تو ہمارا مقصد ہے اس درس کا، اور یہی تو ہے تزکیہ نفس کا مقصد۔ کیا ہے یہ مقصد؟ یہی ہے کہ ذوالقرنین جس طریقے سے اللہ کی دی گئی نعمتوں کی وجہ سے اپنے آرام کا خیال کر کے، اپنے آرام کے لیے، آسائش کے لیے ہر سامان مہیا کر لے اور آرام سے رہیں، تخت پر بیٹھ کر کے دنیا پر حکومت کرتے رہیں، یہ چیز نہیں تھی۔ اور کوئی بھی اچھا اور نیک انسان یہ کام نہیں چاہتا، یہ کام نہیں کرتا ہے، بلکہ جہد مسلسل جسے کہتے ہیں، جو مسلسل کا مطلب مستقل محنت کرنا، مستقل محنت کرنا۔ یہ مستقل محنت کرنا کیا مطلب ہے میرے بھائیو؟ اس کا مستقل محنت کرنا، جو اللہ تعالیٰ نے نعمت دے رکھی ہے اس کی وجہ سے کوشش کرنا، محنت کرنا، اور محنت کر کے آگے بڑھنا۔ یہ حوصلہ ہے جو ہم سب کو اس واقعے سے ملتا ہے، اور یہ حوصلہ ہمارے اندر پیدا ہونا چاہیے۔ کبھی بھی ایک مسلمان، اس کا ٹارگیٹ یہ نہیں کہ ہاں مجھے بس یہ نوکری مل جائے، مجھے یہاں پہ ایڈمیشن مل جائے، یہ نوکری مل جائے، میرا یہ کام ہو جائے، میرا یہ ہو جائے، اور بس ختم، اور اس کے بعد میں تو اب ریٹائرڈ کی زندگی بسر کروں گا۔ نہیں نہیں، ایک مومن کیا ہے؟ بڑے حوصلے والا ہوتا ہے، بڑی مجاہدانہ اس کی جو ہے تگ و دو ہوتی ہے، بڑی کوششیں ہوتی ہیں، کبھی بھی وہ ایسے بیٹھ نہیں جاتا ہے، بلکہ ایک کے بعد ایک اس کا مشن ہوتا ہے، وہ شروع ہوتا رہتا ہے، ایک مشن سے فارغ ہوا دوسرے مشن کی طرف۔ اور یہ پورا کا پورا اس کا مشن کیا ہے؟ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی کے اس امن کے پیغام کو، شانتی کے اس پیغام کو دنیا والوں تک پہنچا دینا، دنیا والوں تک یہ ساری کی ساری چیزیں پہنچا دینا، یہی سب سے اہم ذمہ داری ہوتی ہے، سب سے اہم کام ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ذوالقرنین نے یہی کیا۔ کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ کذالک، ایسے ہی، اسی طریقے سے وہ کام کرتے رہے، چپ کے بیٹھے نہیں ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا وقد احطنا بما لدیہ خبرا، اور ہم نے تو ان کے پاس جو بھی چیزیں تھی ہر ایک خبر کا ہم نے احاطہ کر رکھا تھا۔ احاطہ کا مطلب ہوتا ہے کہ پورے طریقے سے جانکاری رکھنا، پورے طریقے سے علم رکھنا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو کچھ بھی یہ ذوالقرنین کرتے رہے، ہمارے پاس تو اس کا پورا ڈیٹا موجود، پوری خبر موجود، وہ بھی یقینی خبر۔ آج دنیا کے لوگ میرے بھائیوں ایک دوسری قوم کا ڈیٹا چوری کرنا، جمع کرنا، اس کی فکر میں رہتے ہیں، اس کی کوشش کرتے ہیں، اور نہ جانے اس کے لیے کتنی دولت خرچ کرتے ہیں، کتنے پیسے خرچ کرتے ہیں۔ مقصد صرف کیا ہوتا ہے؟ دوسروں کا ڈیٹا جمع کیا جائے۔
अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि जुल्करनैन की सारी खबरें हम उसका अच्छी तरह से इहाता किए हुए थे, हम अच्छी तरह से जानते थे, हमारे पास खबर थी कि ये क्या कर रहे हैं। अल्लाह ताला उनके बारे में उनकी इन सारी फतूहात से पहले भी जानता है, बाद में भी जानता है, अभी आगे क्या होने वाला है वो सब कुछ जानता है। और इब्तिदा से लेकर के क़यामत तक और क़यामत के बाद जन्नत और जहन्नम के ताल्लुक से जो भी इल्म है अल्लाह तबारक व तआला को तो सारा इल्म है। लेकिन यहाँ खास तरीके से अल्लाह तबारक व तआला ने इसका जिक्र फरमाया कि हम जुल्करनैन की इन खबरों के ताल्लुक से अच्छी तरह इल्म रखते थे। उसके बाद क्या कहा, तुम अतबा सबबा, तुम अतबा सबबा, वेस्ट साइड में गए, आखिरी आबादी तक पहुंच गए, ईस्ट साइड में गए, आखिरी आबादी तक पहुंच गए। इस तरह से इनकी फतूहात का ये सिलसिला। फिर अब उसके बाद ये वापस आते हैं तो चुपके से बैठ नहीं जाते, बल्कि क्या करते हैं, फिर तुम अतबा सबबा, फिर उन्होंने फॉलो किया उन असबाब को, उन वसाइल को, उन जराए को, उन सोर्सेस को जो अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें दे रखा था। और शुरू किस्से में ही इसका जिक्र आ गया था कि अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें हर तरह के वसाइल, हर तरह के जराए और सोर्सेस अल्लाह तबारक व तआला ने इनको दे रखे। इन्होंने इन सोर्सेस का इस्तेमाल किया, सही इस्तेमाल किया। तो यहाँ पर भी वही है, सुम्मा अतबा सबबा। मैंने इसके पहले भी आपको ये जिक्र किया था मेरे भाइयों, फिर से याद दिलाता हूँ कि हर सफर के बाद जब उस सफर से वापसी होती है और नए सफर की तरफ रवाना होते हैं तो अल्लाह ताला ने ये बार बार कहा। बस ये है कि अल्फाज कहीं फा और सुम्मा का थोड़ा सा फर्क है, कहीं कहा फअतबा सबबा और कहीं कहा सुम्मा अतबा सबबा। और फा और सुम्मा का जो फर्क होता है अरबिक लैंग्वेज के लिहाज से वो मैंने पहले आपके सामने जिक्र किया है कि सुम्मा में थोड़ी ताखीर भी होती है, यानी जैसे ही वहां से फारिग हुए फौरन निकल गए ऐसा कुछ नहीं था, बल्कि वहां से वापसी होती है, फिर वसाइल और जराए जो उनके पास है उनका जायजा लेते हैं, सोर्सेज जो उनके पास है उसका जायजा लेकर के कि अब हमें किस सिमत में जाना है और वहाँ की ज़रूरियात क्या हो सकती है, वहाँ किन किन हमें वसाइल और जराए की ज़रूरत हो सकती है, कौन से असबाब है जो हमें इख्तियार करना है। तो वो सारी तैयारी पहले करते थे, जिसे होमवर्क कहा जाता है। अच्छी तरह से होमवर्क करने के बाद फिर उस सफर की तरफ रवाना होते, इसीलिए सुम्मा कहा गया। सुम्मा अतबा सबबा, फिर उन्होंने वसाइल और जराए को इख्तियार किया, फिर उन्होंने एक नए सफर की तैयारी शुरू की। और अब नया सफर किधर है, अब वो देखिए। अब जाहिर सी बात है कि अब ईस्ट और वेस्ट हो गया है, अब शिमाल और जनूब यही रह जाता है। तो अब वो एक नए सफर की तरफ जाते हैं। अब कहाँ जाते हैं देखिए, हत्ता इज़ा बलगा बैन सद्दैन। अब इसके बाद ये जब आगे बढ़ते हैं तो आगे बढ़ते हुए जब जाते हैं, अब ये यहाँ भी फतूहात का सिलसिला शुरू होता है। एक और साइड में मान लीजिए शिमाल का साइड, नॉर्थ साइड जो है एरिया है, अब उसकी तरफ जो है ये निकल चलते हैं। अब ये रास्ते में जो भी आबादियां आती है, जो भी इलाके आते हैं, फतह करते हुए आगे बढ़ेंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने इनको ये सलाहियत दी थी, इनको ये नेमतें दी थी, इनको ये वसाइल और ज़राए दिए थे और उसको इस्तेमाल किया इन्होंने। और अल्लाह तबारक व तआला की दी गई इस नेमत का फ़ायदा उठाते हुए अल्लाह के बंदों तक अल्लाह के पैगाम को पहुँचाते हुए आगे बढ़ते गए, यहाँ तक कि अब ये किस इलाके तक पहुँचते हैं उसका ज़िक्र है, हत्ता इज़ा बलगा बैन सद्दैन। यहाँ तक कि जब ये दो ऐसे पहाड़ों के दरमियान पहुंचे,
दो ऐसे पहाड़ों के दरमियान पहुंचे, हत्ता इज़ा बलग बैन सद्दैन। सद्दुन अरबी जबान में कहते हैं बंद को, कहते हैं जैसे डैम होता है, आजकल आप जानते हैं इसको, डैम जो है बनाए जाते हैं, तो अरबी जबान में इसको भी सद कहा जाता है। सद कहते हैं एक चीज जो सामने से चीजों को आने से रोक सके, उसको अरबी जबान में सद्दुन कहा जाता है। तो इसी से पहाड़ जो बहुत ऊंचे होते हैं, तो पहाड़ जब बीच में आ जाता है तो एक साइड के लोग दूसरे साइड की तरफ नहीं जा सकते, तो पहाड़ को भी अरबी में सद्दुन कह लिया जाता है। यहाँ सद्दुन से मुराद यही है मेरे भाइयों। कहा हत्ता इज़ा बलगा बैन सद्दैन, यहाँ तक कि जब ये जुल्करनैन दो पहाड़ों के दरमियान पहुंचे। पहाड़ों के बीच बीच में वादियां होती हैं जहां आबादी होती है। आप जहां भी पहाड़ी इलाके हैं आप जाएंगे तो पहाड़ों के बीच बीच में वादियां कहलाती हैं, ये वैली जिसे आप कहते हैं इंग्लिश में। तो वहां पर आबादियां होती हैं, लोग रहते हैं जो। तो यही मामला यहाँ पर भी हुआ था कि हत्ता इज़ा बलग बैन सद्दैन, जब दो पहाड़ों के दरमियान पहुंचे। दो पहाड़ों के दरमियान जो बीच की जगह है ये वादी है, ये नीची जगह होती है, पहाड़ ऊंचाई पे और ये नीची जगह है। कहा कि जब वहां पहुंचे दो पहाड़ों के दरमियान, और ये एक वादी थी दो पहाड़ों के दरमियान, वहां की जो आबादी थी वहां का मामला क्या था। कहा वजद मिन दूनहिमा कौमा ला यकादून यफ्क़हून कौला। तो उन दोनों के, इन दो पहाड़ों के पीछे, या कह लीजिए परे, ये क्या होता है, ये दो पहाड़ है मान लीजिए और ये आबादी है, ये जमीन का निचला हिस्सा है, ये वादी है, यहाँ पर एक कौम पूरी आबाद है। वादी में पूरी कौम क्या है, वो आबाद है। कौन सी कौम है उसके बारे में बयान कर रहे हैं। वजद मिन दूनिहिमा कौमा ला यकादून यफ्क़हून कौला, एक ऐसी कौम ये इनको मिली यहाँ पर जो बात समझने के करीब भी नहीं थी। यानी एक ऐसी कौम जो आपस में तो बातचीत कर सकते हैं, लेकिन दुनिया की किसी और कौम से वो बातचीत नहीं कर सकते। ऐसी जबान उनकी थी कि वो अपनी जबान ही समझ सकते हैं, और जो जबान ये जुल्करनैन जानते थे, या कहिए कि जुल्करनैन के जो साथी थे, उनकी जो फौज थी, जो जबान ये जानती थी, वो उस जबान से वो नाशना थे, नावाकिफ थे, उनको पता नहीं। तो ये कोई भी जबान जो इनकी जबानें थी, ये कोई जबान, क्योंकि ये तो मुख्तलिफ इलाकों का सफर करके आए हुए थे, मुख्तलिफ जबानों का इल्म भी था जुल्करनैन को। अल्लाह तबारक व तआला ने इनको जो सलाहियत दी थी, इनको जो असबाब दिए थे, इनको जो सोर्सेज अल्लाह ताला ने दिए थे, उन सोर्सेस में से एक सोर्स मेरे भाइयों ये भी था कि अल्लाह ताला ने इनको मुख्तलिफ जबानें इनको जो है सिखाई थी। अल्लाह तबारक व तआला की तौफीक से मुख्तलिफ जबानें, इनको जबानों का इन्हें इल्म था। तो जुल्करनैन तो जाहिर सी बात है उनकी जबान समझे होंगे, बगैर जबान को समझे हुए आगे की बातें कैसे हो सकती है। लेकिन वो लोग कोई और जबान नहीं जानते थे। जुल्करनैन के जो साथी थे वो उनकी बातें जो है नहीं समझ सकते थे। तो एक ऐसी कौम जिनको अपनी जबान के अलावा कुछ नहीं पता, वरना जानते हैं आप कि हर कौम को अपनी जो उनकी जो जबानें होती हैं वो जानते रहते हैं। यहाँ तक कि जो जानवर हैं, जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े हैं, इनकी भी अपनी जबानें हैं, ये आपस में जानते रहते हैं उन जबानों के ताल्लुक से। तो जुल्करनैन को अल्लाह तबारक व तआला ने जो वसाइल और जराए दिए थे, जो सोर्सेज दिए थे, उनमें से एक अहम चीज ये थी कि हर जबान का, जो जबानें उस जमाने के लोग बोलते थे, उसका भी इन्हें इल्म था, इसलिए ये वो बातें समझ सकते थे। लेकिन दूसरे लोग ये बात नहीं समझ सकते थे। तो कहा ला यकादून यफ्क़हून कौला, कि करीब था कि वो लोग कोई जो है बात समझे ही ना। यानी जो इंसान की बातचीत की जो जबान होती है,
उस जबान का इल्म न होने की वजह से बाहमी गुफ्तगू और एक दूसरे को समझने और समझाने का जो मामला हो सकता है, ये उनके साथ मुश्किल था। क़ालू या ज़ल क़रनैन, उसके बाद अल्लाह ताला ने कहा कि उन्होंने कहा, किसने कहा? वहां की आबादी, वहां के बाशिंदे, वहां के लोग, उन्होंने जुल्करनैन से कहा। अब इसी से मालूम क्या होता है कि जुल्करनैन उनकी बात को सब। अब जुल्करनैन और उनके दरमियान क्या बातें होती हैं मेरे भाइयों, नसीहत का और जो है हमारे लिए इबरत का ये बड़ा ही अहम पहलू है। बहुत गौर से यहाँ से सुनिएगा, यहीं से ये चीजें जो है अहम है। बकिया जो बातें और थी, अभी जो दो तीन आयतें आपके सामने आई ना, तो ये ऐसी बातें थी जो पहले भी आई थी, इसलिए मैंने उसकी कोई ज्यादा तफसीर भी नहीं की आपके सामने। लेकिन अब यहाँ से जरा गौर और जुल्करनैन से, और ये बात होने से पहले ये आपको याद दिला दूं कि जुल्करनैन वहां पहुंचे, पूरे इलाके को उन्होंने फतह कर लिया। सब कुछ होने के बाद अब उनका कोई ना कोई आदमी वहां रहेगा, उनके मसाइल क्या है, उनके हालात क्या हैं, उन सब का जानना एक अच्छे हाकिम की जो है जिम्मेदारी होती है। अब उन्होंने अपनी परेशानियां जुल्करनैन के सामने बयान की है, उन्हीं परेशानियों का ये जिक्र है मेरे भाइयों। तो अब देखिए, एक अच्छा हाकिम किसे कहा जाता है? जो अपने लोगों की परेशानियों को सुने भी और उन परेशानियों का सही हल क्या है उसको निकालने की कोशिश करे, और सही हल लोगों के दरमियान जो है लाने की कोशिश करे। ये अच्छे हाकिम की अलामत होती है। तो कहा उन्होंने, कालो, उन्होंने कहा, या ज़ुल क़रनैन, ऐ ज़ुल क़रनैन, इन्न याजूज व माजूज मुफ्सिदून फिल अर्द, कि यकीनन याजूज और माजूज ये जमीन में फसाद बर्पा करने वाले लोग हैं। बड़ी फसादी कौम है याजूज और माजूज। ये पूरी एक कौम है, पूरी एक आबादी है, और उनकी आबादी बहुत ज्यादा है मेरे भाई। और ये उस जमाने में, इन आयतों से पता चलता है कि उस जमाने में ये लोग उस इन दो पहाड़ों के दूसरी साइड में ये लोग कहीं आबाद थे, और मौके मौके से इस इलाके में आ करके बड़ा फसाद बर्पा करते थे। समझना हो तो यूं समझ लीजिए कि ये असल में ये तो बड़ी आबादी है, जैसे डाकू होते हैं हम लोग। तो डाकू क्या होता है? शहर की आबादी में या कहिए गांव की आबादी में आए, अचानक हमला किए, सब लूट करके लेकर के चले गए। ऐसे ही एक फसादी कौम थी, ये आते थे और आकर के लूट मार मचाते थे, फिर वापस चले जाते थे। इनका यही सिलसिला था, और बहुत बड़ी तादाद थी, क्योंकि हदीसों में ऐसा आता है जिससे पता चलता है कि याजूज और माजूज की तादाद बहुत ज्यादा है। तो याजूज और माजूज एक कौम, ये कौन लोग हैं, क्या है इनका मामला, ये तो कुरान में भी जिक्र है यहाँ पर, और हदीसों में भी इनका जिक्र है। क़यामत की बड़ी अलामतों में से एक अलामत है कि याजूज और माजूज फिर निकलेंगे और ये फसाद बर्पा करेंगे। उस जमाने में ये लोग आबादी में आकर के बड़ा फसाद बर्पा करते थे, वहां के लोगों की ये परेशानी थी। अब क्या है ये कुछ फसादी लोग हैं जो फसाद बर्पा करते हैं। अब काम क्या होता है इसमें? आबादी के लिए मसाइल क्या होते हैं कि उनकी जिंदगी जो बड़ी मेहनत से वो कहीं कुछ जो है बनाते हैं, कुछ करते हैं, और किसी तरह से अब जो है जिंदगी लगता है कि अब अपनी पटरी पर आ गई है, सही तरीके से जिंदगी चल रही है, तब तक मालूम हुआ फिर हमला आ गया, फिर सब की सब तहस नहस हो गया। कितने बच्चे यतीम, और कितनी जो है औरतें बेवा, और कितनी माएँ अपने जो है लाडलों के लिए रोती बिलखती। फिर से जो है वही सिलसिला, तकलीफ पहुंचाने का वही मामला शुरू हो जाता था। तो क्या किया यहाँ पर जो है, जुल्करनैन से वहां के लोगों ने ये शिकायत की कि याजूज और माजूज जमीन में ये फसाद बर्पा करते हैं। अब उसके बाद क्या कहा? फहल लक खरजन,
فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا فهل نجعل لك خرجا، اے ذوالقرنین تو کیا ہم آپ کے لیے کچھ خرچ کا انتظام کر دے۔ خرچہ کا معنی اگر میں آج کی زبان میں کہنا چاہوں تو آپ ٹیکس کر سکتے ہیں، ٹیکس جو لگاتی ہے حکومتیں۔ تو اب اس زمانے کے ان لوگوں نے بھی کیا کہا ذوالقرنین سے کہ ہم آپ کو ٹیکس دے دیں گے، بھرپور ٹیکس دے دیں گے، لیکن ہماری آپ سے بس بندی اتنی ہے، ہماری درخواست اتنی ہے، ہم آپ سے یہ صرف خواہش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک بند بنا دے۔ ہمارے اور ان کے درمیان جو یہ راستہ ہے نا، دو پہاڑوں کے بیچ کا یہ راستہ تھا، اسی راستے سے آتے تھے، کہا کہ اس راستے کو آپ ایسا بند کر دیں کہ وہ ہماری طرف نہ آنے پائے۔ میرے بھائیوں، یہ ہے اب یہاں سے ہماری جو ہے سوچنے اور غور کرنے کی باتیں، قرآن میں تدبر کرنے کی باتیں، یہ سلسلہ میرے بھائیوں اب یہاں سے آتا ہے۔ یہ قوم کس سے مطالبہ کر رہی ہے؟ ذوالقرنین سے۔ کیا مطالبہ کر رہی ہے؟ کہ یاجوج اور ماجوج کی جو فسادی قوم ہے، ان کے فساد سے ہم کو بچانے کے لیے آپ کیا کر دیجئے، ایک بیچ میں کوئی ایسا بند باندھ دیجئے، بیچ میں ایسا ڈیم یہاں پر بنا دیجئے کہ وہ اپنی آبادی سے ہماری آبادی کی طرف نہ آئے، ان فسادیوں سے ہم محفوظ ہو جائیں۔ یہ ذوالقرنین سے مطالبہ کر رہے ہیں۔ اب تھوڑی دیر کے لیے آپ سوچئے، یہاں پر یہی ہے، سوچنے کی یہی باتیں ہیں کہ کیا یہ لوگ اس سے پہلے خود کیوں نہیں کرتے تھے؟ انہوں نے خود یہ سب چیزیں کیوں نہیں کی؟ یہ جب بند باندھنے کی مسئلہ اگر ان سے مقابلے کا ہوتا تو ان کے پاس طاقت نہیں تھی کہ یہ مقابلہ کر لیتے، اور اسی وجہ سے انہوں نے مقابلہ نہیں کیا۔ اب ذوالقرنین آئے ہیں، اب ان کے پاس بڑی فوجی طاقت ہے، تو اب ان کی طاقت کے ساتھ مل کر کے مقابلہ کر سکتے ہیں، تو انہوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ چلو ہم مل کر کے ان سے مقابلہ کریں گے۔ ایسا تو کچھ نہیں ہے یہاں پر، یہاں کیا ہے؟ صرف بند باندھنا ہے، ڈیم بنانا ہے۔ ایسے علاقے آپ دیکھیے جہاں پہ ہمیشہ سیلاب آتے ہیں، اور ہر سال جب سیلاب آیا تو اس کے لیے لوگ ریلیف جمع کرتے ہیں۔ کبھی یہ بھی سوچو کہ یہ سیلاب جہاں پہ آتا ہے کیوں آتا ہے؟ ایسی کوئی شکل نہیں ہو سکتی کہ ایسا کچھ یہاں کیا جائے کہ یہ ہمیشہ کے لیے آبادی محفوظ ہو جائے اور سیلاب کی اس مصیبت سے لوگوں کو چھٹکارا مل سکے۔ ایسا کچھ سوچنے کے بجائے ہر سال جب ایسا ہو جائے گا تب مدد کے لیے کچھ ہاتھ آگے بڑھتے۔ تو یہاں پر کیا ہے معاملہ میرے بھائی؟ ہماری جو ہے قوم جو ہے نا، ہماری قوم کے لوگوں میں اس طرح کی چیزیں بہت زیادہ ہے۔ آج وہی ہے، کہیں پر فساد ہو گیا، پورے کی پوری قوم برباد ہو گئی، تو کچھ لوگ چندہ کر کے آ جاتے ہیں، چندہ کر کے کیا کرتے ہیں؟ ہاں چلو پھر سے ہم ان کی دکانیں۔ کیوں بھائی ایسا کچھ کیوں نہیں کرتے کہ یہ فساد کیوں ہوتا ہے، اس پر لگے یہ پابندی؟ اس کے لیے کوشش کیوں نہیں کرتے؟ چندے جمع کرنے کی خالی کوشش ہوتی ہے، یہ کوشش نہ ہونی چاہیے کہ کیوں یہ ایسا ہوتا ہے اور کیوں یہ پوری قوم اجڑ جاتی ہے، کیوں ایسا معاملہ ہوتا ہے؟ تو یہ سوچ نہیں ہوتی ہے۔ اس میں کہاں غلطی ہوتی ہے؟ اسی قصے سے آپ کو بات سمجھ میں آئے گی۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ جو قصے ذکر کیے گئے اس میں عبرت اور نصیحت کے لیے ہمارے لیے بیش بہا خزانے ہیں میرے بھائی۔ دیکھیے یہاں پر کمی کیا تھی، اب اس کو آئیے، اب اس کی طرف آئیے۔ کمی کیا تھی؟ کہ ان کے پاس کوئی لیڈرشپ نہیں، کوئی ایسا لیڈر نہیں تھا جو لیڈر صحیح معنی میں ایسا کوئی کام کر سکتا تھا، کچھ نہیں تھا، بس بکھری ہوئی ایک قوم تھی۔ اور اسی وجہ سے ہمیشہ ان کو یہ پریشانیاں ہوتی تھی، یاجوج ماجوج آتے تھے، لوٹ کر کے لے کر کے چلے جاتے تھے، تباہ و برباد کر کے چلے جاتے تھے، ہمیشہ ایسا ہوتا تھا، لیکن کوئی ایسا شخص نہیں تھا جو وہاں پر بند باندھ سکتا۔
अब जुल्करनैन की शक्ल में उनको एक लीडर मिला। तो उस लीडर से भी ये क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि हम आपको टैक्स अदा कर देंगे। आप देखते हैं ना कि दूसरी जो है मुख्तलिफ कंपनियां आकर के रोड वगैरह बना देती हैं और बाद में उससे टैक्स लेती रहती है। तो क्या कहा इन्होंने? इन्होंने वही कहा कि हम खरज का लफ्ज जो आया हुआ है उसका मफहूम तकरीबन यही है कि आप जो हमारे लिए ये काम करेंगे हम मुफ्त में नहीं आपसे ये काम लेंगे, हम जो है उसके लिए आपको जितना भी हमें टैक्स देना होगा हम टैक्स अदा करेंगे। मतलब क्या है, सब कुछ ये करने की पोजीशन में थे, लेकिन कोई लीडरशिप न होने की वजह से कर नहीं पा रहे। बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे, वो एक बड़ा मसला होता है। कोई आगे बढ़ेगा तभी ना होगा। ये आगे बढ़ने का और आपको आगे बढ़ करके पूरी कौम को लीड करने का जो मामला होता है, ये असल कमी थी उनके, यही चीज उनके अंदर नहीं पाई जाती, इसीलिए ये बिखरी हुई कौम थी। और आज हमारा भी वही हाल है। इसलिए आज के इन हालात में याद रखिएगा इस किस्से की अहमियत। जुल्करनैन ने क्या कहा? हाँ ठीक है, अच्छा है, मैं आपके लिए बंद बना देता हूँ और आप टैक्स मुझे देते रहिएगा और मैं आपके खून का आखिरी कतरा तक उस टैक्स में निचोड़ लूंगा। वो कोई दुनियादार बादशाह नहीं थे, हाकिम नहीं थे मेरे भाई। उन्होंने कहा हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, अल्लाह का दिया हुआ हमारे पास बहुत कुछ है। यही एक अच्छे हाकिम की अलामत होती है। अल्लाह ताला का दिया हुआ हमारे पास बहुत कुछ है। क्या कहा? देखिए, कहा क़ाल मा मक्कन्नी फ़ीहि रब्बी खैर, कहा कि जो मेरे रब ने मुझे दिया है, जो मेरे रब ने मुझे दिया है वही मेरे लिए बेहतर है। बहुत है मेरे रब ने जो मुझे दे रखा है, तुम्हारे टैक्स की मुझे कोई जरूरत नहीं। मुझे तुमसे पैसा नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। बल्कि उन्होंने कहा ठीक है, हम यहाँ पर बंद बना देंगे। करना क्या है आपको? मुझे आपसे पैसे नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए मुझे आपसे। करना क्या है? कहा फ़अईनूनी बिक़ुव्वा अजअल बैनकुम व बैनहुम रदमा। कहा कि तुम जो है मेरे लिए सिर्फ क्या करो, कुव्वत और ताकत से मेरी मदद करो, तो मैं एक मजबूत दीवार यहाँ पर, बंद यहाँ पर मैं बना दूंगा। क्या कहा उन्होंने? फ़अईनूनी बिक़ुव्वा, तुम मेरी मदद करो कुव्वत से। ये कौन सी कुव्वत होती है मेरे? ये वो कुव्वत है जिसे कहते हैं मेन पावर। मेन पावर ये कौन सी कुव्वत होती है मेरे भाइयों? ये वो कुव्वत है जिसे कहा जाता है कि जो वसाइल हैं, जो जराए हैं, जो सोर्सेस हैं, ये सारी चीजें उस कौम के पास थी। जुल्करनैन अलग से कोई चीज नहीं लेकर के आए, मेन पावर भी वहीं से लिया। और जिन चीजों, इन मेटल्स की जरूरत थी इस बंद को बनाने के लिए, वो सब कुछ भी वहीं से लिया, कहीं और से कुछ नहीं आया। यही है, यानी ये कोई ऐसा लीडर नहीं था जो बढ़ करके ये काम कर सके। लीडरशिप की कमी मेरे भाइयों, ये इंसानों की तबाही का सबब बनती है। आज अगर हम दुनिया में हर जगह पर धुतकारे जा रहे हैं, तो उसकी एक अहम वजह हमारी जिल्लत और रुसवाई की एक अहम वजह क्या है कि हमारे दरमियान कोई लीडरशिप, कोई एक ऐसा लीडर जिसकी लीडरशिप इतनी आला दर्जे की हो कि वो किसी भी मामले को अल्लाह ताला के दिए गए जो भी वसाइल और जराए है, जो भी सोर्सेज है, उसको काम में ला करके मेन पावर जो हमारे पास मौजूद है मेरे भाइयों, हमारे पास न असबाब की कमी है, न सोर्सेस की कमी है, हमारे पास मेन पावर की भी कमी नहीं है। अगर कमी है तो सिर्फ और सिर्फ लीडरशिप की।
और यही कमी इस कौम के पास। मुझे तुमसे पैसा नहीं चाहिए, तुमसे कोई दौलत नहीं चाहिए, कोई टैक्स नहीं चाहिए, बल्कि तुम मुझे मेन पावर, तुम्हारे पास जो असबाब और जराए या सोर्सेस है वो लाओ, उससे फ़ाइनूनी बिक़ुव्वा अजअल बैनकुम व बैनहुम रदमा। उसके बाद क्या कहा, आतूनी ज़ुबुरल हदीद, कहा कि लाओ मेरे पास लोहे की चादरें, लोहे जैसे सरिया होता है ना, आजकल जो है आप देखते रहते हैं कि लोहे के सरिये जो है उससे आदमी पहले एक जाल सा बना देता है और उस जाल के बाद जो है उस पर कंक्रीट डाल देता है तो कितना मजबूत हो जाता है। उस जमाने में यही किया जुल्करनैन ने, बस थोड़े से जो है सोर्सेस अलग थे लेकिन किया यही काम। क्या कहा, तुम्हारे पास जो लोहे की ये सिलें पड़ी हुई हैं, लोहे के जो ये सामान है ना, ये सब ले करके आओ। अब उसके बाद उन्होंने इसी लोहे का ये जो दो पहाड़ों के बीच की जगह थी उसमें एक या मेरे पास लेकर के आओ, हत्ता इज़ा सावा बैन सदफैनी, यहाँ तक कि जब दोनों के पहाड़ों के दरमियान ये लोहे की ये चादरें खड़ी करते करते ये बिल्कुल पहाड़ की चोटी तक पहुंच गए, दोनों साइड में बीच का ये रास्ता था, ये वादी थी और दोनों तरफ पहाड़ थे, दोनों तरफ ये जो है पहाड़ और बीच की ये जगह, बीच की इस जगह को क्या किया उन्होंने, पूरे तरीके से लोहा वहां पर फिट कर दिया, जो समझ लीजिए कि सरिया डाल करके एक जाल सा वहां पर बना दिया। अब इसके बाद क्या करना है इसको मजबूत करने के लिए, काल उनफुखु हत्ता इज़ा जअलहु नारा काल आतूनी उफ्रिग अलैहि क़ितरा। जब ये लोहे की चादरें, लोहे के ये सरिये पूरे तरीके से वहां उसका जाल बना दिया गया, तब उन्होंने हुक्म दिया कि आग तेज चलाओ। अब इन लोहों को गर्म करना था, गर्म करने के बाद ही जब इसके इनके ऊपर से तांबा या कोई भी चीज पिघला हुआ डालेंगे, जैसे आजकल कंक्रीट डालते हैं ये, तो कंक्रीट नहीं है ये, बस उस जमाने के ये दूसरा मेटल है, ये दूसरा मेटल गर्म करके उस पर डाल देंगे तो ये पूरा क्या पूरा ऐसा बंद बन जाए, बंध जाए, डैम बन जाएगा कि अब उसे कोई तोड़ नहीं सकेगा। उसी के बारे में कहा कि उनफुखु, पहले कहा कि अब फूंक मारो ताकि यहाँ पे आग लगे, पूरे तरीके से ये सारे के सारे लोहे बिल्कुल गर्म हो जाए, बिल्कुल जो है गर्मी से, जब ये लोहा को आप देखे हो कि जब आग में डालेंगे तो बिल्कुल सुर्ख हो जाता है, वैसा हो जाए। हत्ता इज़ा जअलहु नारा, जब उसे आग बना दिया, काल आतूनी उफ्रिग अलैहि क़ितरा, पिघला हुआ मतलब क्या है, वो भी गर्म करके बिल्कुल पिघला हुआ, जैसे आप चारकोल देखते हैं, चारकोल डाल दिया जाता है, वैसे ही पिघला हुआ तांबा वहां पर डाल दिया, इस तरह से ये पूरा बंद बंध गया मेरे भाई। अब बताइए, इतना काम वो पहले नहीं कर सकते थे, कर सकते थे। क्या जुल्करनैन गए थे मुकाबला करने याजूज माजूज से? नहीं, कुछ नहीं किया उन्होंने, उन्हीं का सब कुछ था, मेन पावर भी वही है, वसाइल भी सब वही है, जो उनके पास सोर्सेस थे वही सब कुछ है, बस क्या है, एक लीडरशिप की कमी थी, वो लीडर मिल गया जुल्करनैन की शक्ल में, जब लीडर मिला तो वहां पर ऐसा बंद बन गया कि अब याजूज और माजूज इस साइड में नहीं आ सकते, और उससे उनको उस अहम सबक क्या है हमारे पास, आज हमारे पास मेरे भाइयों वसाइल जराए की कमी नहीं, आज हमारे पास
हर तरह का मेन पावर मौजूद है, हर तरह का की सरवत। और हम जिन जगहों पर, जिन इलाकों पर हमारी मुस्लिम हुकूमतें हैं, ये जो है जोग्राफियाई लिहाज से बड़ी अहमियत की हामिल है। ये सब कुछ हमारे पास है, लेकिन नहीं है तो सिर्फ और सिर्फ लीडरशिप, जिसकी हमें ज़रूरत है ज़ुल्करनैन जैसे लीडर की। और जब ये चीज़ होगी मेरे भाइयों, तो फिर फसादी कौमों के फसाद से बचना और उनकी फसाद के आगे बंद बांध देना, ये हमारे लिए आसान, वही सिर्फ हमको ज़रूरत है। ये है ज़ुल्करनैन का किस्सा। और इससे आपको सूरह कहफ की अहमियत का अंदाजा भी हो रहा होगा कि फितनों के इस दौर में सूरह कहफ को समझा जाए और समझ करके इसको जिंदगी में अप्लाई किया जाए, तो फितनों से हिफाजत में ये कितना अहम किरदार ये सूरह अदा करती है, उसका आपको अंदाजा हो रहा। हम लोग समझते हैं कि शायद जो है हम तिलावत कर लेंगे तो मसला नहीं, नहीं। असल क्या होता है ना, कुरान को पढ़ना, समझना, तदब्बर करना और उसके मुताबिक जिंदगी को ढालना, ये असल में फितनों से बचाव का अहम जरिया होता है। और ये चंद बातें थी मेरे भाइयों और बहनों। आज का दर्स हम यहाँ पर खत्म करना चाहेंगे। हमारा दूसरा दर्स अब शुरू हो जाएगा और ये है खिलाफत राशिदा के बारे में। खिलाफत राशिदा के ताल्लुक से हमारा जो दूसरा दर्स है वो अब हम शुरू करेंगे। और इसके पहले बात आपके सामने आ चुकी है कि उमर रज़ियल्लाहु